થશે થશે અને થશે અને એક વસ્તુ બરાબર સમજી લેજો, આત્મવિશ્વાસ સાથે શરૂ થયેલું કામ ચોક્કસ પૂરું થાય થાય અને થાય. આત્મવિશ્વાસ કે મેં આ કાર્ય ઉપાડ્યું છે ને રિઝલ્ટ મળશે મળશે અને મળશે અને ન બને એવું બને નહીં. પોતાના આત્મવિશ્વાસ અને એક વસ્તુ બરાબર સમજી લેજો, જે માણસ મનથી હારી જાય, પોતાનો આત્મવિશ્વાસ ખોઈ દે, હવે મારા દુનિયા કે અને ન થાય એવું ના બને, પણ જે વખતે તમને મનથી એમ થઈ ગયું કે હવે મારાથી નહીં થાય, સાહેબ હવે નહીં થાય, હવે નહીં થાય, હવે નહીં થાય, અને જે દિવસે તમે આત્મવિશ્વાસ ખોવી દીધો ને એ દિવસે તમે ખલાસ. આત્મવિશ્વાસ તમારા જીવનની અંદર બહુ મહત્વપૂર્ણ છે અને એની અંદર તમને એક જ મિનિટની અંદર વાત કરી. અત્યારે તમને ખબર વિશ્વમાં સૌથી એના કરતા પણ ઉપર, એના કરતા આગળ છે. વિશ્વમાં સૌથી વધારે વેચાયેલું આજની તારીખમાં પુસ્તક કયું? હેરી પોટર. 7 સિરીઝ અને 7 સિરીઝના પુસ્તકોને ભેગા કર. હેરી પોટરના લેખિકા કોણ? જેકે રોલિંગ નામથી ભોજન કરવાના પૈસા નતા અને કચરો હોય ને કચરો, કચરાની અંદર કોઈ કાગળ નાખ્યું હોય, એમાંથી કાગળ ઉપાડે, એના પાછળની બાજુ એક સાઈડ છાપેલું હોય, એક સાઈડ કોરું હોય અને એની અંદર લખવાની શરૂઆત. વિચાર કરજો, ધ્યાન અહીંયા ફોટાવાળા તમારા ફોટા બરાબર પાડી મારી તરફ ધ્યાન રાખો. જેકે રોલિંગ અને એ જેકે રોલિંગ કચરાનો ડબ્બો અને જે પ્રેસની ઓફિસો હોય એની બહાર બેસે, કચરાના ડબ્બા એની અંદર જે કચરો બહાર નીકળે, એક બાજુ છપાયેલું હોય, એક બાજુ કોરું હોય, એ કાગળ એ ચૂથાઈ ગયેલું હોય, એ કાગળને સીધું કરે અને એની ઉપર લખવાની શરૂઆત. સફળતાએ શરૂઆત કરી અને પહેલો ભાગ લખાયો, 400 પાના લખાયા. શેની ઉપર? કચરાના પેપર. કચરાના પેપર ઉપર 400 પાના લખાયા અને 400 પાના લખાયા પછી એ ગઈ પબ્લિશર પાસે કે મારે આ બુક પ્રિન્ટ કરવી. પબ્લિશરે કીધું કામ કરો ભાઈ, અમે ટોપના ઇંગ્લેન્ડના ટોપના પબ્લિશરો છે, આ બુક તમારા કાગળના ઠેકાણા નથી, કાગળ એક તમારું સારું નથી, તમારી પાસે લખવા માટેની કાગળની સહી સારી નથી, કાગળ સારું નથી, ચૂંટાયેલા કામના કર્યા પછી બીજા 10 ડાયરેક્ટરો લીધા. પરિસ્થિતિ હવે સમજ, પરિસ્થિતિ વિકટ એ ઊભી થઈ ગઈ. પહેલું કોમ્પ્યુટર બનાવ્યું અમેરિકાની અંદર, હાહાકાર જબરજસ્ત સક્સેસ થઈ ગયું. બીજું અને ત્રીજું કોમ્પ્યુટર ડબ્બાદોલ થઈ ગયું. કંપની ખાડામાં આવી ગઈ અને એક વસ્તુ, અને કંપની ગઈ પાછી ફરતા. કંપની ખાડાની અંદર એપલ વાળા થઈ ગયો કે હવે સ્ટીવ જોબ્સ વગર નહીં ચાલે. એને પકડીને પાછો કંપનીની અંદર ડાયરેક્ટર બનાવ્યો અને 2007 ની અંદર મોબાઈલના જગતની અંદર ક્રાંતિ થઈ ગઈ. એને એપલનો આઈફોન, પહેલો આઈફોન 2007 ની અંદર બહાર પાડ્યો અને આજે ચાલે છે 2011 વર્ષની અંદર એ માણસે દુનિયા બદલી નાખી. 11 વર્ષની અંદર એપલ શું છે પહેલા કોઈને ખબર નથી અને આ 11 વર્ષની અંદર દુનિયા આખી ચેન્જ કરી નાખી, દુનિયાને બદલી નાખી. એવો જબરજસ્ત વ્યક્તિ સ્ટીવ જોબ્સ અને એના જીવનમાંથી આપણે એક જ વસ્તુ જોવાની છે, સ્વપ્ન જુઓ અને સાહસિક બનો. ધર્મની અંદર પણ આપણું સાહસિક પણ હોવું જોઈએ. મારે ધર્મ કરવો છે, શરીર જાય બાજુની અંદર, મન જાય બાજુની અંદર, પણ મારે ધર્મ કરવો અને ચોક્કસ કરવો છે. એ સાહસિક પણ તમારે ધર્મની અંદર. સાહેબ દાન દક્ષિણા કરી લેશું, ધર્મની અંદર પૈસા વાપરીશું, પણ તપ અમારાથી નહીં થાય. માથું મોટું કે છે, શરીરને મૂકો સાઈડમાં, મનને મૂકો સાઈડમાં. મેં બધાને કીધેલું છે, આજે બધા બેઠા છે, ફરીથી કહી દઉં, મનને જેટલું પણ ગમે ને બધું શું છે ભાઈ, તમારા મનને જેટલું પણ ગમે, મનને એમ થાય કે આ કરવું છે, સમજો લો તમારા માટે પાપ છે, અને મનને જેટલું પણ ન ગમે બધું તમારા આધ્યાત્મિક જીવન માટે ગોલ્ડન રૂલ બનાવીને રાખી દેજો. મનને જે પણ ગમે, મનને ફરવા જવાનું મન થાય તો સમજી લેવાનું, અને દેરાસર જવાનું મન ન થાય તો મનને અવોઇડ કરતા શીખો. મન ન કે પહેલા તો તમે ધર્મમાં આગળ વધી શકશો. ધર્મની અંદર પણ સાહસિક બનો અને સંસારની અંદર પણ સાહસિક બનો. ક્યાંય જીવનમાં હારનો સામનો નહીં કરવો પડે. આજે 9 મંત્રો તમને આપ્યા છે, એ 9 મંત્રો જો તમે તમારા જીવનની અંદર ઉતારી લીધા, એ 9 મંત્રોને તમે જો હૃદયસ્થ. મિત્રો, હું જાણું છું કે સ્મશાનમાં શરણાઈ ન વગાડાય, લગ્ન મંડપમાં વરસ્યા ન ગવાય, એમ આવા સમયે ભાષણ ન થાય. પરંતુ મિત્રો, હમણાં જે મેં વાણી સાંભળી એ માત્ર વાણી નથી, સર્વાણી હતી. મારે જાદુ નથી કહેવું, હું એક નાનકડી વાર્તા સાહેબે જે મહારાજ સાહેબે જે વાત કરી એના અનુસંધાનમાં કહું છું કે રામાયણમાં એક સુંદર પ્રસંગ છે કે રામ અને રાવણ બંનેનું યુદ્ધ થયું. રાવણ હારી
ભાગી જવાની હણી પર હતો. એને થયું કે હવે હું કશું કંઈ કરી નહીં શકું. કોઈ વડીલોએ સલાહ આપી કે તું કુંભકર્ણને ઉઠાવ. કુંભકર્ણ એક એવી માયાવી શક્તિ છે જે તને જીતાડશે. બહુ ટૂંકમાં કહું છું કે તું કુંભકર્ણને ઉઠાવ્યો. કુંભકર્ણને બધી વાતો કરી કે હું સીતાનું હરણ કરી લાવ્યો, રામ લંકા પાર કરી લાવ્યા, વગેરે વગેરે વગેરે. આપણા તમામ સૈનિકો નાશ થયા હતા. હવે તું મને મદદ કર. કુંભકર્ણ ચકિત થઈ ગયો. કહું કે તું મારો ભાઈ છે, હું તને જરૂર મદદ કરીશ. જો એક ભાઈ એને છોડીને ગયો. એક ભાઈ કહે છે કે તે ખરાબ કામ કર્યું છે, પણ તું મારો ભાઈ છે, હું તને જરૂર મદદ કરીશ, પણ મારા એક સવાલનો જવાબ આપ. જેમ મહાભારતનો યક્ષ પ્રશ્ન છે, એમ રામાયણમાં કુંભકર્ણ પ્રશ્ન છે કે મારા એક સવાલનો જવાબ આપ કે મેં ઊંઘીને ગુમાવ્યું છું અને તે જાગીને મેળવ્યું છું. શું જાગીને તે મેળવ્યું? આપણે શું મેળવીએ છીએ જાગીને? આપણે કર્મ કરીએ છીએ, પણ એ કર્મનું ફળ શું છે? હેલો. બીજી વાત કરીશ, જે એને લાવનાર છે મારા કેવુરભાઈ, એને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. પણ એની સાથે અત્યારે જે મીડિયા દેખાઈ રહ્યું છે, દરેક ચેનલ આવી છે, સ્ટાર ચેનલ પણ છે, હસ્તકળા છે, દરેક ચેનલ આવે છે, દરેક પત્રકારો આવે છે. આને ભેગું કરનાર અમારા ગગનભાઈ અને અમારા અખિલેશ, આ લોકોએ આ અખિલેશ અને બે મારી પાસે ત્યારથી મેં કીધું નોનવેજ નહીં ખાવ તો હું काम करो नहीं तो नहीं करूँ. मारे एक का सिद्धांत ये जाते हम के जैन भोजन खाया तब से नॉनवेज खाने का मन ही नहीं होता. और मेरे नॉनवेज बंद कर दिया 30 दिन से वीडियो आपके परिचय में 1 महीना हो चुका है. 1 महीने से मैंने नॉनवेज कुछ हुआ नहीं. मेरे पप्पा खुश है इधर, हरेश हरुभाईના પપ્પા એ પણ ખુશ છે, કારણ કે અમારો દીકરો નોનવેજ નથી ખાતો. અમને બહુ મોટો આનંદ છે સાહેબ. આ જ એક ફળશ્રુતિ છે. આ ગુરુ ભગવાન આવ્યા પછી આ એક ચમત્કાર થાય. ગુરુના દર્શન, ગુરુના આશીર્વાદ, એટલે ગુરુ એક માધ્યમ છે, એક બ્રિજ છે. એટલે જ તમારા પાસે અમારા લાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આજે આવ્યા છે પરિવાર, એમને કહીશ કે તમારો આ જે ધ્યેય છે લોકોને સ્વાર્થ જીવનમાંથી કાઢીને અને આ નાટક દ્વારા લોકોના મગજમાં ઉતારવું છે. અને બહુ સરસ તમે નાટક કરી કેટલાના જીવનો સુધારી રહ્યા છો. અને સુધા પરિવાર ટ્રસ્ટી સાથે કહીશ, જરા બહુમાન કરજો. આજનો દિવસ કેવો છે? આજનો દિવસ કેવો છે? આજનો દિવસ કેવો છે? કોના કરતા બહુ ખુશ છું. બોલો જય ચાચા. શાસ્ત્રીજી ભગવાન 25મો ઉપવાસ આજે 25 દિવસથી ખાલી પાણી સિવાય, ઉકાળેલા પાણી સિવાય કાંઈ કરતા કાંઈ વાપર્યું નથી. એવા શાસ્ત્રીજી ભગવાનની જોરદાર અનુમોદના કરજો. તપસ્વી તપસ્વીનો તપસ્વી તપસ્વીનો. હવે જે પણ ટીમ બનાવી છે, ગુરુ ભગવાનને કીધું સંસ્કાર આપવાનું કામ સમાજને આજે જે અપડેટ થવાની આપણે વાત કરી, અમે કદાચ 100 જણા સુધી પહોંચી શકીએ, પણ એ મૂવીના માધ્યમથી હજારો નહીં લાખો લોકોના જીવનની અંદર એક સાચી દિશા અને સાચું માર્ગદર્શન મળી શકે. એના માટે અમારા રાહુલભાઈએ એક સરસ મજાનું હવે વિપિનભાઈને એક શાલ કહેવાય ને કે એક સંસ્કૃતિ આપણી શાલની ખૂબ જ સરસ બહુમાન આપનું. હવે હું વિનંતી કરીશ વિપિનભાઈને, મુરબ્બી પ્રવીણભાઈ સોલંકી અને આજના આપણા લાભાર્થી પરિવારને પણ આગળ વિનંતી કરી સૌ કોઈ તાળીઓનો ગડગડાટ. વિજયભાઈ, આજના શિબિરના લાભાર્થી પરિવાર, પુનિશાલી પ્રીતિબેન વિજયભાઈ દોશી પરિવાર, એ સ્ટુડન્ટ આજના અજીતભાઈ સર, ભાવભર્યું સ્વાગત. જોરદાર તાળીઓ રૂકવી ન જોઈએ, મેરેથોન હોવી જોઈએ. ખૂબ જ સરસ, એટલો સરસ પ્રયાસ, એક સંસ્કારને સિંચવવાનો ખૂબ જ સરસ પ્રયાસ. નીતિનભાઈ પધારો. આખી ટીમને બેસ્ટ ઓફ લક અને હાર્ટી કોમ્પ્લિમેન્ટ્સ ફ્રોમ અવર સાઇડ કે તમારો આ પ્રયાસ
ખૂબ જ સફળ રહે અને સિને જગતમાં ખૂબ જ કિર્તિભાઈ કાનાવાલા આવો 78 તાળીઓનો ગડગડાટ 78 સંસ્થાઓ સાથે મળી અને પ્રવીણભાઈનું બહુમાન થવાનું છે ઝવેરબેન પોપટના સભાગૃહમાં ખરેખર એક ખૂબ જ વિરલ વ્યક્તિ આપણી સાથે છે અને આપણા ઘાટકોપરનું નજરાણું અને કહેવાય ને કે આપણા ઘાટકોપરનું ગૌરવ એવા શ્રી પ્રવીણભાઈ સોલંકીનો આ ભગીરથ પ્રયાસ છે એમને ખૂબ જ સફળતા રહે એવી પ્રભુને પ્રાર્થના। आगे ही ना स्वामी जी ने सर्वप्रथम तो मैं पहले इंट्रोड्यूस करता हूँ। फिल्म के लेखक हैं प्रवीण सोलंकी, नट सम्राट फिल्म के दिग्दर्शक निर्देशक हैं जैन गिलाटर साहब और निर्माता हैं राहुल जी। किधर हैं? ये राहुल जी हैं। आज हम यहाँ मुनिश्री के महाराज साहब के आशीर्वाद लेने यहाँ आए थे। हमारी फिल्म जो है नट सम्राट गुजराती में, तो वो फिल्म के विषय में तो प्रवीण भाई बहुत अच्छी तरह से फिल्म क्या है, किस प्रकार से लिखी गई है। महाराज श्री ने ये कहा कि आजकल जो संबंध जो हैं माँ बाप के संतानों के अपने साथ, कि सभी संबंध जो हैं वो स्वार्थ से भरपूर होने लगे हैं। तो वो क्यों हुए हैं, किस लिए हुए हैं, वो तो हर एक संबंध के अपने अपने दायरे होते हैं उस हिसाब से। बट उन्होंने ये कहा कि ये फिल्म हर माँ बाप ने, हर संतानों ने अपने साथ बैठकर देखनी चाहिए और ऐसी संस्कारी फिल्म आप बनाते रहिए ताकि लोगों तक वो मैसेज भी पहुँचे। तो महाराज श्री ने हमें आशीर्वाद भी दिया। और नट सम्राट जो फिल्म है उसमें जो काम करने वाले कलाकार हैं, सिद्धार्थ रांदेरिया गुजराती नाट्य जगत के बहुत ही सीनियर मोस्ट कलाकार हैं, यशस्वी कलाकार हैं। और उनकी पत्नी का रोल जो निभा रही हैं वो है दीपिका चिखलिया जी, जिन्होंने रामायण में सीता की भूमिका निभाई थी। बहुत ही मतलब ये ऐसे लेजेंडरी पर्सनालिटी हैं अंदर। मैं भी एक रोल अंदर कर रहा हूँ। वो सिद्धार्थ जी जो पात्र निभा रहे हैं उनके मित्र का पात्र है और माधव नाम है मेरा उस पात्र का। और सच्चा दोस्त और दोस्त भी कैसा हो सकता है जीवन में, तो बहुत सारी ये कहानी के विषय में तो प्रवीण जी कहेंगे। बट एक निश्चित रूप से कहूँगा कि गुजराती फिल्म इंडस्ट्री का जो स्वरूप पिछले 3 साल में बदल रहा है, जिस प्रकार से बदल रहा है, उसमें ये जो नट सम्राट फिल्म है वो घर घर में हर तबके के लोगों को, हर एज ग्रुप के प्रेक्षक को ये फिल्म बहुत ही अच्छी लगेगी। और ये फिल्म में से वो घर तक कुछ डेफिनेटली लेकर जाएंगे और वो उनके मन में तो रहेगी, उनके मस्तिष्क में भी रहेगी और वो और लोगों को भी बोल पाएंगे कि आप जाके देख कर आइए। तो इस प्रकार की फिल्म बनी है। ये नहीं कि मैं 120 फिल्मों में काम कर चुका हूँ आज तक, लेकिन गुजराती मेरी मातृभाषा है और मेरी मातृभाषा की फिल्मों में मैं हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेता हूँ। साल में मिनिमम एक फिल्म ज़रूर करूँगा, ऐसा प्रण लिया है और मैं वो करता रहता हूँ। मैंने तीनों भाषा में काम किया है, मराठी, गुजराती, हिंदी, और तीनों माध्यमों में काम किया है, चाहे वो रंगमंच हो, सीरियल हो या फिल्म हो। लेकिन गुजराती फिल्म इंडस्ट्री धीरे धीरे बढ़ रही है। गुजराती फिल्म इंडस्ट्री का जो दायरा है वो विश्वव्याप्त है, मतलब पूरे वर्ल्ड में गुजराती कोने कोने में बसता है, लेकिन वहाँ तक चैनल पूरा नहीं हुआ है और उसकी भी शुरुआत थोड़ी बहुत हो चुकी है। तो ये नट सम्राट जो फिल्म है वो निश्चित रूप से लोगों को, मतलब हर भाषा के लोग देख सकते हैं। मतलब फिल्म में एक भाषा का दायरा नहीं होता। मराठी फिल्में भी हिंदी लोग देखना चाहते हैं, जाते हैं, हम भी साउथ इंडियन फिल्में देखते हैं। तो किसी भी भाषा का प्रेक्षक जो है वो ये फिल्म ज़रूर देख सकता है और उसके मन को और उसके दिमाग को डेफिनेटली ये छू कर ही रहेगी, इसमें कोई शंका को स्थान नहीं। बहुत ही अद्भुत फिल्म बनाई है। जैन गिलाटर साहब ने बहुत अच्छा दिग्दर्शन किया है।
प्रवीण सोलंकी जी, उन्होंने आज तक 210 नाटक लिखे हैं खुद, और ये फिल्म के लेखक भी वही हैं। और राहुल सुगंध जी सुगंध परिवार से हैं। इतने अच्छी फिल्में उन्होंने दी हैं हिंदी में कि मतलब क्या कितनी फिल्मों के नाम गिनाऊं। उसमें रंगीला है, सरकार है, तो उनको डिस्ट्रीब्यूशन का, प्रोडक्शन का अनुभव कुटुंब में ही है। तो ऐसी जो भट्टी है वो अच्छे तरीके की जमी हुई है, और इसलिए इसमें कोई भी अंदर का जो भाग है, चाहे वो सेट डिज़ाइन हो, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे वो अभिनय का क्षेत्र हो, चाहे वो राइटिंग पार्ट हो, सभी अंगों से परिपूर्ण ऐसी फिल्म बनी है। और डेफिनेटली गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में ये एक मोरपींछ का स्थान धारण करेगी, ऐसा हमें लगता है। और प्रेक्षकों से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि आज गुरुजी के आशीर्वाद भी मिले हैं महाराज साहब के, और प्रेक्षकों से आह्वान करना चाहता हूँ कि ये नट सम्राट जो फिल्म है वो थिएटर में जाकर देखें, और न उसकी पायरेसी को बढ़ावा देने का कोई भी काम, न गुजराती फिल्म किसी भी फिल्म को वो पायरेटेड वर्जन में न देखें, क्योंकि आप 5 रुपये में या 15 रुपये में फिल्म देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ में करोड़ों का नुकसान प्रोड्यूसर का तो होता ही है, पर साथ में पूरी इंडस्ट्री को करोड़ों का नुकसान होता है। उसमें काम करने वाले हर एक कलाकार, हर एक तंत्रज्ञ का वो नुकसान है, ये पहले मानिए। इसलिए पायरेटेड चीज़ों को बिल्कुल अपने जीवन में स्थान न दें, अपने मोबाइल में भी स्थान न दें, ये मैं प्रार्थना करता हूँ। और नट सम्राट फिल्म ज़रूर अवश्य जाकर थिएटर में देखिए, आपको बहुत भाएगी। थैंक यू, एंड आई विल हैंड इट ओवर टू प्रवीण भाई। प्रवीण भाई, देखिए, ये कहानी विवाह शिरवाडकर की थी। नट सम्राट मराठी नाटक था पहले, बाद में मैंने उसका आज से 30 साल पहले गुजराती नाटक किया था, हमारी दुनिया तुम्हारी दुनिया। मराठी भी नाटक हुआ, मराठी भी, यानी नट सम्राट। ये कहानी सिर्फ विवाह शिरवाडकर भी रिलेटेड नहीं है उसके साथ। विवाह शिरवाडकर जी ने भी कहा कि मैंने ये शेक्सपियर के 2 नाटक मिक्स किए हैं, शेक्सपियर के 2 नाटक, यानी जो भी हो, लेकिन इतना अद्भुत मिश्रण हुआ है ये नट सम्राट का कि कई भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन हुआ है, कई भाषाओं में। पहली बात ये है कि ये जो फिल्म मराठी में हुई और गुजराती में फ़र्क क्या है। गुजराती और मराठी, क्योंकि फ़र्क बहुत कम है, एक बिटवीन द लाइन्स है, क्यों कि जो कहानी है वो तो वही की वही है, कहानी एक ही है, लेकिन जो उसका मेकिंग है, परफॉर्मेंस है, गुजराती के 2 दिग्गज, ये मनोज जोशी और सिद्धार्थ रांदेरिया, कभी मैंने, मेरे ख्याल से गुजराती में आप दोनों ने साथ में फिल्म में पहली बार काम कर रहे हैं, तो लोगों को एक रस है कि ये इंटरेस्ट है कि ये दोनों साथ में मिलकर क्या करेंगे। और ये आमतौर पर क्या होता है कि जब भी कोई कहानी, वो परंपरागत कहानी है, उसमें कुछ नया नहीं है, सुनो, जो अभिव्यक्ति है वो नहीं है, एक एक्टर के माध्यम से जीवन का फलसफा दिखाया है। और उसका मेन मीनिंग क्या है, वो 4 लिटी में मैं आपको बताऊँ कि हाथी को नहीं कहना पड़ता कि तू हाथी बनना, सिंह को नहीं कहना पड़ता कि तू सिंह बनना, वाघ को नहीं कहना पड़ता कि तू वाघ बनना, लेकिन एक आदमी को ही क्यों कहना पड़ता है कि तुम आदमी बनना। ये बड़ी चीज़ है, आदमी बनने की बात, मानसाई की बात, मानवता की बात, स्वार्थ संबंधों की बात। यानी ये फिल्म ऐसी है कि सिर्फ कानों और आँखों से नहीं, दिल तक पहुंचनी चाहिए, और पहुंची है, ये मेरा दावा है। ये फिल्म चलेगी, ज़रूर चलेगी। थैंक यू। जा सकता है वेंटिलेटर बनी, अब नट सम्राट बनी है, तो नट सम्राट की खासतौर पर क्यों चुनी गई? सबसे पहले तो मैं आपको इस बारे में बता दूं कि नट सम्राट मराठी का रीमेक नहीं है, नट सम्राट एडेप्टेशन है। गुजराती नट सम्राट मराठी फिल्म का एडेप्टेशन है, इट्स नॉट रीमेक। बहुत सारे लोग साउथ की फिल्मों का रीमेक करते हैं,
तो हूबहू सीन वैसे ही होता है, कैरेक्टर्स वैसे होते हैं। हमने पूरी कोशिश की है कि मराठी नट सम्राट और गुजराती नट सम्राट में बहुत फ़र्क हो, उसकी सिर्फ आत्मा हमने ली है। प्रवीण भाई ने उसकी पटकथा, उसके जो स्क्रीन प्ले है, जो गुजराती ऑडियंस को जो चाहिए, आप देखेंगे तो गुजराती ऑडियंस बहुत ही आउटस्पोकन है, बाहर घूमना पसंद करती है, उनको रोना धोना पसंद नहीं है। गुजराती ऑडियंस को खुशी चाहिए, होप चाहिए। उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये फिल्म को लिखा और उसी हिसाब से हमने इस फिल्म को शूट किया। दूसरी बड़ी बात यह है कि जैसे मराठी में 2 दिग्गज कलाकार थे, नाना पाटेकर एंड विक्रम गोखले, सेम यहाँ पर भी गुजराती के आज दो सुपरस्टार हैं, मनोज भाई और सिद्धार्थ भाई, वो दोनों साथ में आने का मतलब ये एक बहुत बड़ा मौका है ऑडियंस के लिए भी कि इन दोनों को साथ में पहली बार देखेंगे। गुजराती में आज तक ऐसा हुआ नहीं, मराठी में ऐसा बहुत बार हुआ, हिंदी में बहुत बार हुआ कि 2 बड़े सुपरस्टार साथ में आए हैं, बट गुजराती में पहली बार होने जा रहा है। और इसके लिए मैं डेफिनेटली मेरे प्रोड्यूसर मिस्टर राहुल सुगन और मेरे मित्र, मेरे भाई मनोज जोशी, इन्होंने हाँ बोला कि मैं इस फिल्म में काम करता हूँ। और आप देखेंगे कि मनोज भाई ने जो फिल्म में काम किया है, पहली बार आप मनोज भाई को एक अलग रूप में देखेंगे। तफावत बहुत सारी है इस फिल्म में। तीसरी बड़ी बात हमारे पास है कि दीपिका जी जो रामायण में सीता बनी थी, वो 25 साल बाद इस फिल्म में रीइंट्रोडक्शन हो रहा है उनका। और कुछ ऐसे लोकेशंस हैं जो गुजराती ऑडियंस ने भी नहीं देखे, कभी हिंदी में भी नहीं आए, ऐसे कुछ लोकेशंस पर जाकर हमने शूट किया हुआ है। जब कास्टिंग हो रही होगी, जब फिल्म के लिए एक्टर्स फाइनलाइज किए जा रहे होंगे, तो मनोज सर आएंगे इसमें, सिद्धार्थ अंधेरिया आएंगे, ये तो कैसे फाइनलाइज हुआ? मतलब पिक्चराइजेशन कैसे हुआ, विजुअलाइजेशन कैसे हुआ, किस आर्टिस्ट को इस रोल में बैठेगा? देखिए, पिक्चराइजेशन और विजुअलाइजेशन की बात तो ऐसे है कि जैसे हमने स्क्रिप्ट रीमेक राइट्स लिए थे, एडेप्टेशन के राइट्स लिए थे, फिर प्रवीण भाई के पास गए, बात की सारी, तो राहुल जी और उनके पिताजी जो है हरीश जी, उन्होंने बहुत सारी सुपर डुपर हिट फिल्म बनाई और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस उन्हीं को है। हमारे यहाँ पे हम जितने भी बैठे उनको, उन्होंने कुछ कास्टिंग में बात की, कुछ किया, सिद्धार्थ भाई का नाम आया, मनोज जी का नाम आया कि ये 2 कलाकार जो है, ये 2 कलाकार साथ में एक साथ दिखाई देंगे। और आज ये 2 कलाकार के ऊपर गुजराती में और कोई कलाकार अभी है नहीं, तो जो 2 बेस्ट है वही इस फिल्म के लिए चाहिए थे, इसलिए हमने जो 2 बेस्ट है उन्हीं को चुना। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब ये कहानी आपको बताई गई होगी कि मेरा दुर्भाग्य है कि मैंने वो फिल्म नहीं देखी, मैं नहीं देख पाया रादर, बट उस फिल्म के बारे में काफ़ी सुना है। डेफिनेटली महेश मांजरेकर जी ने उस फिल्म को डायरेक्ट किया था, नाना पाटेकर ने नट सम्राट का रोल किया था, और जिनको मैं पिता तुल्य मानता हूँ और मेरे आदर्श रहे हैं, ऐसे विक्रम गोखले जी का ही रोल, मतलब जो रोल उन्होंने किया है उसी जॉनर का वही रोल रादर मैं कर रहा हूँ इस फिल्म में। तो दूसरी बात एक कि नट सम्राट नाटक मैंने दोनों का देखा है, यशवंत दत्त जी का भी देखा हुआ है और लागू साहब का भी देखा हुआ है, नट सम्राट नाटक मराठी। मैं मराठी थिएटर भी कर चुका हूँ। तो जैसे प्रवीण जी ने भी कहा कि ये किंग लियर और हेमलेट, ये दोनों नाटकों का सार जो है या उसका जो सोल है वो लेकर शिरवाडकर साहब ने इसे बहुत अद्भुत तरीके से, जिसको कहते हैं कि भारतीयता, उसको देने की कोशिश उसमें की। और उसके बाद 30 साल पहले प्रवीण जी ने तो बहुत सारे नाटक लिखे हैं, 210 नाटक लिखे हैं गुजराती में। तो उन्होंने जब हमारी दुनिया 30 साल पहले बनाया, तब पता नहीं था कि इस पर फिल्म भी बनेगी। तो चूँकि ये आई नट सम्राट फिल्म, और देखो मराठी और गुजराती दोनों भगिनी भाषा है, और आदान प्रदान जो है वो आज से 175 साल पहले से ही आदान प्रदान हो रहा है दोनों भाषाओं, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो जैसे संगीत नाटक वहाँ इंट्रोड्यूस हुआ पारसी रंगभूमि से मराठी में भी, तो गुजराती में भी संगीत नाटक इंट्रोड्यूस हुआ। मामा वरेरकर साहब के प्लेज भी होते थे, कई प्लेज नाटक भी गुजराती भाषा में हुए। तो ये आदान प्रदान वर्षों से हो रहा है। तो
मैं इतना कहूँगा कि जिस समय इतने महान कृति को जब फिल्माया जा रहा है, ऐसा विषय जब मेरे पास आया और इतने दिग्गज कलाकारों का परफॉर्मेंस मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ, तब जाके एक मन पर भी थोड़ा दड़पन रहता है कि इसको कैसे निभाएंगे, क्या करेंगे। बट करते समय बड़ा आनंद आया। जब ये भूमिका मेरे पास लेकर आए तब मैंने कहा ठीक है, जैन भाई के साथ मैं 2-3 फिल्में कर चुका हूँ और मैंने कहा ये बहुत बड़ी चीज़ है गुजराती के लिए, तो मैं निश्चित रूप से काम करूँगा। और काम करने का बहुत मज़ा आया। जो भी 12-15 दिन मैंने काम किया, और आप जब पर्दे पर देखेंगे तो निश्चित रूप से आप, मैं ही मेरे काम के लिए क्या बोलूँ, बट निश्चित रूप से आनंद आएगा, इसमें कोई शंका को स्थान नहीं, क्योंकि विषय इतना महान है, उसकी लिखावट इतनी महान है, और काम करने वाले कलाकार मेरे जो दिग्गज कलाकार हैं साथ में सारे, जिसके लिए वो रेडी हो जाएं। सबसे पहले उन्होंने क्या कहा दीपिका जी ने? दीपिका जी ने सबसे पहले तो ये कहा कि चेंजेस क्या क्या हुए, क्या हम फ्रेम टू फ्रेम सेम टू सेम बना रहे क्या। जब मैंने उनको चेंजेस बताए, उनके जो 2-3 सीन जो प्रवीण भाई ने लिखे जो मराठी में नहीं है, जो गुजराती में है, वो जब मैंने उनको सुना है वो बहुत खुश हो गए। बोले ये सीन आप रखेंगे? बोला हाँ, ये सीन हम रखेंगे। उसके बाद उन्होंने मराठी फिल्म देखी, फिर मेरा स्क्रीन प्ले जो प्रवीण भाई ने लिखा था, पूरा स्क्रीन प्ले हमने उनको सुनाया। उसके बाद उन्होंने तुरंत हाँ बोल दिया कि नहीं, मैं ये फिल्म करूँगा। आपने ये फिल्म डायरेक्ट करने से पहले खुद नट सम्राट कितनी बार देखी? सर मैंने एक ही बार देखी थी। हाँ, फिल्म जब रिलीज़ हुई थी तब मैंने गोरेगांव में PVR में जाकर देखी थी, एक ही बार देखी थी। उसके बाद मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मैंने एक बार भी वो फिल्म वापस देखी नहीं, क्योंकि मैं उस फिल्म के भाव में नहीं जाना चाह रहा था। वो एक क्लासिक फिल्म है, महेश मांजरेकर जी ने बहुत क्लास फिल्म बनाई, नाना पाटेकर जी ने, विक्रम जी ने, उसको मैं टच नहीं कर सकता, मेरी कोई औकात नहीं है। बट गुजराती ऑडियंस के लिए एक गुजराती फिल्म मुझे बनानी थी, और नट सम्राट, अगर मेरी भी मातृभाषा गुजराती है, और प्रवीण सर, मनोज भाई, सिद्धार्थ भाई, इन सबके साथ मिलकर अगर मुझे मौका मिल रहा है इस फिल्म में करने का, तो मैंने इस वजह से हाँ बोला कि मैं ये फिल्म करूँ। नहीं, ये इनका बहुत बड़प्पन है। ही इज़ वेरी डोसाइल, बट ही इज़ अ वेरी फाइन टेक्नीशियन, वेरी गुड। वो हमारे साथ डिजिटल पार्टनर है, प्रिंट पार्टनर है इस फिल्म में। उसके बाद ड्रीम वर्ड सॉल्यूशंस है हमारे साथ डिजिटल पार्टनर, दिव्या भास्कर है हमारे साथ मीडिया पार्टनर, और कौन पेटीएम है, पेटीएम सॉल्यूशंस वाले हैं। शुभकामनाएं जरा ले लेते हैं फिल्म पे। ये भैया बहुत अच्छी फिल्म आ रही है गुजराती में, नट सम्राट। आप मीडिया पार्टनर शुभकामनाएं देना चाहते हैं आप? ज़रूर, क्योंकि गुजराती फिल्म इंडस्ट्री जो है अपने पैरों पे अभी खड़ी हो रही है। पिछले कुछ सालों से गुजराती फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी अच्छी फिल्में आ रही है। नट सम्राट इसमें एक सीमा चिन्ह रूप फिल्म होगी। जो गुजराती में ऐसा कहा जाता है कि कुछ कॉमेडी फिल्में ही चलती है या ड्रामा वाली चलती है, उसको जो कहावत है उसको तोड़ने के लिए नट सम्राट मैं मानता हूँ। इसीलिए हम इस साथ जुड़े हुए, क्योंकि ये एक क्रिएशन है, मराठी से लिया हुआ एक थॉट, मराठी से लेकर उसको गुजराती भाषा में बड़ा करना, ये थॉट के ऊपर इन्होंने काम किया है। बहुत ही अद्भुत। प्रवीण भाई से हमारे संबंध वर्षों जुने हैं, जयंत भाई ने भी अच्छी फिल्में बहुत सी दी है, तो ज़रूर से ये फिल्म गुजराती सिनेमा का इतिहास बदलने का काम करेगी। गुजराती फिल्मों का ट्रेंड इस तरह से बदला है कि अब गुजरात को छोड़ के बाकी के स्टेट में भी गुजराती जहाँ रहते हैं वहाँ फिल्में देखी जा रही हैं। महाराष्ट्र में, मुंबई में खासकर जो संस्थाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फिल्मों को इनकरेज कर रही है। अच्छा मार्केट बन रहा है गुजराती के लिए। सब टाइटल्स होने का शायद एक बड़ा फायदा होता है। मे भी। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, ये पहली गुजराती नट सम्राट फिल्म है जो ऑल ओवर वर्ल्ड रिलीज़ हो रही है। मतलब सेकंड वीक और थर्ड वीक में कोई फिल्में रिलीज़ हुई है, बट नट सम्राट एक ऐसी फिल्म है जो 30 अगस्त को एक साथ इंडिया में और ओवरसीज़ में UK, USA, कनाडा, UAE, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों में रिलीज़ हो रही है एक साथ। आगे प्रमोशन में कैसा प्लान है? जैसा आप पूरी अपनी फिल्म करीब 10 दिन बचे हैं, 11 दिन बचे हैं। सर प्रमोशन का अभी जैसे 22 तारीख से हमारा प्रमोशन शुरू हो जाएगा। 22 से लेकर 31 तारीख तक हमारा प्रमोशन है, अलग अलग जगह पे जा रहे हैं। 22 तारीख को हम
एक गुजराती चैनल है कलर्स का, उनके एक सीरियल में हम इंटीग्रेशन करें। 23 तारीख को हम प्रवीण जी को जो सम्मान किया जा रहा है, 201 नाटक उन्होंने किया है, उनके यहाँ हमारा प्रमोशन शुरू होगा। 24 तारीख से लेकर 30 तारीख तक हम पूरे गुजरात में घूमने वाले हैं। सम्राट फिल्म गुजराती फिल्म की एक सिम्मा चिन्ह फिल्म आप ज़रूर देखिए और परिवार के साथ जाइए और थिएटर में जाकर ये फिल्म देखिए, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। दादा जी आइए, आइए आप भी आ जाइए, आइए नीलेश जी, यहाँ पे नट सम्राट गुजराती जो फिल्म है उसकी पूरी टीम आई हुई थी ब्लेसिंग्स लेने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। आपने गुजराती में उन्हें बहुत सारा आशीर्वाद दिया, मुझे गुजराती थोड़ी कम समझ में आती है। अगर आप हिंदी में हमें बताएं कि आपने उनसे क्या कहा या किस तरह से आशीर्वाद दिया तो बहुत बेहतर होगा हमारे लिए। हमने ये जो नट सम्राट गुजराती में पिक्चर जो रिलीज़ होने जा रहा है उसके लिए हमने यही बात करी कि उसके पहले भी हिंदी में पिक्चर, मराठी में पिक्चर बाहर पड़ा हुआ है और इसके बाद गुजराती में सही लोगों को मार्गदर्शन मिले, संस्कार मिल सके, इस संस्कार से लोगों को, अच्छे लोगों को परिवर्तन हो सके। अभी संस्कार की ज़रूरत है, लोगों को संस्कार भूल चुके हैं, वो लोगों के दिमाग में उतर सके, इसीलिए ये नट सम्राट गुजराती पिक्चर द्वारा लोगों के जीवन के अंदर संस्कार आ सके। यही माध्यम उनको हमने आशीर्वाद दिया है कि एक एक आपका भाग है, ये संसार में अपन जन्म लिया है, ये सब नाटक है, पिता है, पुत्र है, माता है, बहन है, भाई है, भाभी है, ये सब एक नाटक का रोल है। पर ये कर्म करने का आपको एक मिला है, इस कर्म के द्वारा यहाँ ऐसे ऐसे कर्म करने, अच्छे अच्छे कर्म करने हैं, उस कर्म को आपको यहाँ से कर्म कम करके, ये स्वार्थ पूर्ति कम करके और जीवन को धन्य बनाने के लिए ये मार्गदर्शन संस्कार द्वारा मिलता है। ये पिक्चर द्वारा आजकल लोग हमको प्रवचन सुनने आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग 2000-3000 लोग आएंगे प्रवचन सुनने के लिए, पर एक आपका एक सोशल मीडिया, आपका ये मीडिया पिक्चर द्वारा हज़ारों लोगों को सुन सके और उनको मार्गदर्शन मिल सके और उनके जीवन के अंदर संस्कार आ सके। यही हमने उनको आशीर्वाद दिया है कि जीवन के अंदर परिवर्तन आवे और संस्कार आवे, यही हमारा आशीर्वाद दिया है। शायद नट सम्राट जैसी फिल्में बनाने के लिए उनकी ज़रूरत इसलिए भी पड़ती है क्योंकि हमारे परिवारों में, हमारे परिवार के सदस्यों में प्रेम कम हो गया है, ये एक बड़ी बात है। आप एक संस्था भी चलाते हैं गुरु प्रेम, उसके बारे में जरा बताएं। हाँ, मेरे गुरुदेव प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब, तपाक अच्छाधिपति प्रेम सुरेश्वर जी महाराज साहब, उनकी उम्र 97 उम्र थी उनकी। उनके गुरुदेव का कालधर्म हुआ, उसको 2 साल हो चुके हैं। उनकी गुरुदेव की एक ही भावना थी, मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है, ये गुरुदेव की भावना थी। और जब से गुरुदेव गए तब से मैंने मन में ठार लिया है कि गुरुदेव आपकी जो इच्छा है हम वो पूरे करेंगे। जब से गुरुदेव गए तब से 2 साल से हमने गुरु प्रेम मिशन का नाम से एक कार्यक्रम चालू किया, एक लॉन्च करने जा रहे हैं, उस कार्यक्रम में आगे बढ़े हैं। और तब से मानव सेवा का कार्य के लिए 2 साल के अंदर कम से कम 2 करोड़ रुपये हमने मानव सेवा के पीछे लगाए हुए हैं। वो पानी का पूर्ण राहत हो या किसी भी कोई भी काम का राहत हो, अभी भी जैसा चल रहा है केरल में, वहाँ भी हमने अभी 10-15 लाख रुपये हमने भक्तों द्वारा, गुरु प्रेम मिशन द्वारा हमने वहाँ पैसे भेजे हुए हैं और वहाँ लोगों के लिए खाना भेजा हुआ है। ये हमारा गुरुदेव की भावना थी कि मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है और मानव के लिए हर ज्ञान बढ़े, उनके अंदर संस्कार आवे, उनके अंदर जीवन के अंदर हिंसा दूर हुए, उनके अंदर प्रेम भाव बढ़े, यही हमारे गुरुदेव की भावना है। ये मानव सेवा द्वारा, ये मानव सेवा गुरुदेव की भावना थी और हम गुरु मिशन द्वारा ये कार्यक्रम हम हर जगह, हर हिंदुस्तान के अंदर कार्यक्रम करना चाहते हैं और उस आपके मीडिया द्वारा सबको पहुंचाना चाहते हैं कि मानव सेवा करनी जरूरी है और ये गुरु मिशन हमारा ये काम करने जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, इसके लिए खूब प्रगति कर रहे हैं, उसीलिए हमें खूब को आशीर्वाद दिया है और आप लोगों को भी खूब को आशीर्वाद है। गुरु जी, जो गुरु प्रेम मिशन है, जो संस्था है आपकी, ये आने वाले वक्त में और किस तरह की क्या क्या चीज़ें ऑर्गेनाइज करने वाली हैं? मानव सेवा जो आपने कहा, मानव धर्म की सेवा की जाए, ऐसे ही मेरे गुरुदेव की भावना थी। अब वो मानव सेवा बात, उसके साथ अभी में हम टूंक समय में वो कार्यक्रम होने जा रहा है। मार्च में गुरुदेव को
शताब्दी वर्ष की शुरू होने जा रहे हैं, उस समय बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है मैंने। जो खेडूत अपघात करके मर रहे हैं उनके लिए, गायों के लिए पानी की परब और जीवदया के लिए, और अभी हम जो काम करना चाहते हैं उसी चीज़ में हम आगे बढ़ेंगे। मार्च महीने में 2019 के अंदर 20 मार्च से लगा के 24 मार्च में बहुत बड़ा कार्यक्रम रहा। हम पूरे जैन 5 लाख जैन इकट्ठे होकर ये कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। इसके अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है, आप इसमें सब जुड़िए और मानव सेवा के साथ और साथ जीवदया का काम और हर चीज़ के कार्यक्रम के लिए, स्कूल के लिए, पढ़ाई के लिए, हॉस्पिटल के लिए, हर चीज़ के लिए हम आगे बढ़ने चाहते हैं इस काम में लिए। और आप लोगों का पूरा सपोर्ट चाहिए और यही लोगों को मार्गदर्शन देना चाहते हैं हम। गुरुदेव की भावना थी, जब आप पावरफुल होंगे इसी चीज़ से, तो आज अभी सबसे चीज़ लोगों की 2 चीज़ की ज़रूरत है। सबसे चीज़ की ज़रूरत लोगों की ज़रूरत है, एक हॉस्पिटल और एक पढ़ाई। 2 चीज़ बहुत महंगी हो चुकी है, उस लोगों को तक पहुंच सके और हम गुरु मिशन द्वारा वहाँ पहुंचा सके, ऐसे हम आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा देते जा रहे हैं। गुरु जी, जब आप सत्संग में होते हैं बहुत सारे लोग आते होंगे आपके पास, अपनी छोटी बड़ी समस्याएं लेके आते होंगे, परिवार की समस्याएं भी लेके आते होंगे, जो विषय पर आज हमारे सिनेमा आधारित है। तो आप उन्हें क्या कहते हैं? जैसे बेटे पिता की बात नहीं मानते, पुत्र मानते नहीं है, बेटियां अलग राहों पर जा रही हैं, उन्हें कैसे आप समझाते हैं? उन परिवारों की समस्याओं को कैसे दूर करते हैं? हम एक ही समस्या, आज मैंने प्रवचन में गुजराती में बोला था, जिस पत्नी घर के अंदर पत्नी और माँ जिसका बहुमान नहीं है, उस घर के अंदर लक्ष्मी का वास नहीं रहता है। उनको पहली चीज़ आज हर व्यक्ति लक्ष्मी के पीछे, पैसा पीछे पागल के जैसा दौड़ रहा है, पर घर के अंदर घर की लक्ष्मी है उसको खुश नहीं रखता है, उसको उतार देता है बार बार। और माँ को और पत्नी को, परिवार को खुश रखेगा, उसके अंदर घर में का लक्ष्मी का वास रहता है। यही हम अलग अलग एंगल से उसको समझाते हैं। ऋषि मुनियों ने शुरू से ही हमारे देश को, भारत देश को, उनका मार्गदर्शन किया है, लोगों को सही राह दिखाया है। आज के समय में, आज के इस वक्त में, इस दौर में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है इंसानियत को, मानवता को? मैंने पहले ही बोला, अभी और बोल रहा हूँ, अभी इंसान को खाने के लिए मिल जाएगा। अभी हॉस्पिटल और पढ़ाई 2 चीज़ बहुत महंगी हो चुकी है। आदमी खाने के लिए कुछ भी खा सकता है, पेट भर सकता है, पर ये दोनों चीज़ें बहुत महंगी पड़ रही है। तो उन लोगों के लिए जितना पते उतना सहाय करें, मदद करें। हर संस्था, हर ट्रस्ट, हर व्यक्ति उसके लिए, अपने समाज का हो, अपने साथ का हो, अपना फ्रेंड हो, अपना दोस्त हो, अपना ग्रुप हो, कोई भी हो, उसको ये दोनों चीज़ में सबसे ज़्यादा सपोर्ट करे तो हर व्यक्ति खड़ा हो सकेगा। और वो आज व्यक्ति को अपन सपोर्ट करेंगे, कल वो व्यक्ति को ऐसी प्रेरणा दे, वो दूसरे 2 व्यक्ति को सपोर्ट करे, तो सारे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी गरीबी नहीं रहेगी और पढ़ाई हर बच्चा कर सकेगा और हर घर के अंदर से बीमारी दूर हो सकती है। शुक्रिया गुरुजी, धन्यवाद। अगर आप कुछ कहना चाहें, जो चीज़ मुझसे छूट गई हो, मैंने ना पूछी हो, तो आप कहें। बस ये मीडिया द्वारा आपको कहना चाहता हूँ, हमारे गगन भाई ने ये जो सोशल मीडिया आप सबको, हमारे अखिलेश भाई ने सबको इकट्ठा किया आपको मीडिया द्वारा, ये हम सब परिवार को आशीर्वाद देते। ऐसा ही मीडिया द्वारा लोगों के जीवन के संस्कार दें, ऐसी बात सबके जगह पहुँचाएँ, हिंसा की बात और लोगों को जो खराब चीज़ें कम पहुँचाएँ और लोगों के जीवन के परिवर्तन है वो चीज़ अच्छी दें। हमको आपके तरफ से यही आपकी अपेक्षा है, ये चीज़ की लोगों को प्रेरणा दे, ऐसी कोई चीज़ दो, लोगों का जीवन परिवर्तन हो, ऐसी कोई प्रेरणा दो। मीडिया द्वारा, आज तक मीडिया द्वारा सबसे परिवर्तन यही ला सकता है, दूसरा कोई नहीं ला सकता है। फोटो मार दीजिएगा।